Students, today we'll go with various definitions given by various economists. First of all, the first definition is given by Adam Smith. Let us divide the definition into two equal parts of Adam Smith. First part, it should be, please take the pencil and underline the first part, that is, economics is a study of the nature. It says that economics is a study of nature because in economics we consider the factors of production which belongs to nature. किस तरीके से हम वहां से वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज द अदर पार्ट सेज दिस एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. हमारा जो नेशन है उसका वेल्थ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम वेयर वी प्रोड्यूस द वेल्थ, उसके कॉजेस किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं वो पढ़ाया जाता है. इसीलिए इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ऑफ नेशन, ऐसा एडम स्मिथ कहते हैं. इकोनॉमिक्स स्टडीज द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय लेबर. ये बेसिकली फिजिकल वेल्थ जो लेबर प्रोड्यूस करता है उसके बारे में पढ़ाता है. Adam Smith introduced economics as a social science. On the one hand, he studied human effort, social science because it exists in the society. Whenever it says that economics is a social science, इसका मतलब कि एक ऐसा साइंस जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है, जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है. And on the other hand, his methodology was scientific. और दूसरी साइड पे उनकी जो मेथड्स थी वो साइंटिफिक थी. Since the times of Adam Smith talked about human welfare only in his book. Adam Smith ने जो बुक लिखा था वो था Wealth of Nation. Please write over that book written by Adam Smith is Wealth of Nation. Second, definition of economics by Alfred Marshall. Alfred Marshall ने जो definition दिया था वो था Principle of Economics. He wrote the book Principle of Economics. I repeat, Alfred Marshall wrote the book Principle of Economics, published in 1890. 1890 में publish हुआ. Alfred Marshall defines economics is a study of mankind in ordinary business of life. हमारा जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, हमारा जो रेगुलर बिजनेस है, जो कैजुअल बिजनेस है, बिजनेस मतलब आप जो बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो वो नहीं, हमारे जो रेगुलर एक्टिविटीज है, मैनकाइंड जो रेगुलर एक्टिविटीज कैरी आउट करता है, खरीदना, बेचना, ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सारी हमारे जो रेगुलर एक्टिविटीज जो है उसके बारे में बात करता है. एंड हेंस Alfred Marshall says that economics is a study of mankind in the ordinary business of life. Adam Smith says that it is a wealth of nation and he wrote the book Wealth of Nation. Whereas Alfred Marshall says that it is subject which deals with the ordinary business of life of human being. Human beings, इंसान उनकी रोजिंदा जिंदगी में कौन सी चीजें करते हैं उसके बारे में वो स्टडी करता है. It implies that everyday life people usually seek material well-being. हम रोजिंदा जिंदगी में मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए जीते हैं, जैसे जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है उसके लिए हम मेहनत करते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में बात करता है. Thus this definition identifies economics as the study of everyday activity of human beings and seeks to explain how well-being is attained for the material consumption. किस तरीके से आप वेलबींग अटेन करते हो, किस तरीके से इंसान सेटिस्फाइड होता है, किस तरीके से वो कंटेंटेड फील करता है बाय सेटिस्फाइंग हिज नीड्स फ्रॉम वेरियस गुड्स. This definition is narrow as it talks only about the material consumption और material well-being. ये सिर्फ material consumption और material well-being को consider करता है. मतलब as per Alfred Marshall एक human being एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ material consumption और material contentment और satisfaction को सर्च करता है. ठीक है. Yet it is important as it keeps human well-being at the center of human activity. लेकिन ह्यूमन मतलब इंसानों का भला होना चाहिए, इंसान की बेहतरी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय लियोनार्ड रॉबिन्स. अब रॉबिन्स जो बात करते हैं वो अलग है थोड़ा. एनी फील्ड ऑफ साइंस डील्स विद द प्रॉब्लम क्वेश्चंस एंड इकोनॉमिक्स डील्स विद द क्वेश्चन. आई रिपीट, एनी फील्ड ऑफ साइंस डील्स विद द प्रॉब्लम क्वेश्चंस एंड इकोनॉमिक्स डील्स विद द क्वेश्चन. कोई भी फील्ड होता है इकोनॉमिक्स का तो वो प्रॉब्लम क्वेश्चंस के साथ डील करता है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो सवाल को सॉल्व करता है, which solves the solution. How to allocate limited resources which have alternative uses. हमारे जो resources जो limited है, जो unlimited नहीं है, जो limited है, मतलब human needs बहुत सारी है, हमारी जरूरतें बहुत सारी है, पर उन्हें satisfy करने के लिए जो resources है वो बहुत कम है. तो वो रिसोर्सेज का कौन सा बेस्ट पॉसिबल यूज ले जो आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा.
Okay, and it says in the satisfaction of recurring and unlimited human wants in order to increase the well-being in the society. So what Leonard Robbins talk about, Leonard talks about कि हमारी जो needs है, human needs है, वो बहुत ज़्यादा है, it is unlimited, और उनको satisfy करने के लिए जो resources है वो बहुत कम है, और हम वो रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल लें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वो लिमिटेड रिसोर्सेज से मिले। मतलब आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, वो पीस ऑफ लैंड का हम क्या कर सकते, उसके बहुत सारे यूजेस है कि भाई वहाँ पे स्कूल बन सकती है, मॉल बन सकता है, हॉस्पिटल बन सकता है, या तो फिर सिनेमा हॉल बन सकता है, शॉपिंग सेंटर बन सकता है, पर वहाँ पे हमें क्या बनाना चाहिए, कौन सा बेस्ट पॉसिबल यूज होगा उस लैंड का जो हमारी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा, उसके बारे में बात करते हैं लियोनार्ड रॉबिन्स। When you take the maximum utilization of your resources and satisfy your needs, that is human, how in the way where the human uses the limited resources and satisfy all his needs is being talked about in economics as per Leonard Robbins. सबकी definitions अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, क्योंकि it is a study of a mankind. जब मैनकाइंड के बारे में बात करते हैं हम, तो मैनकाइंड की जो ज़रूरतें हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, किसी की ज़रूरतें सेम नहीं रहती, और इस वजह से जो डेफिनेशंस है वो भी हमारी चेंज हो रही है। As I always say, that economics is a study of human beings, and human beings cannot be perfect, and hence those imperfections become the basis of criticism. I repeat, economics is a study of human beings, and human beings cannot be perfect, and those imperfections become the basis of criticism. इस वजह से नए नए इकोनॉमिस्ट आते हैं और नई नई डेफिनेशंस लाते हैं। Hence in 1931, Leonard Robbins in his book Nature and Significance of Economics, his book says Nature and Significance of Economics, gave the following definition. Economics is a science which studies human behavior, हमारा behavior as a relationship between and scarce means which have alternate uses. And scarce means मतलब वो means, वो resources जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, means basically एक medium जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, जो end है और scarce है और उसके अलग अलग यूजेस है। तो आपकी उनके साथ रिलेशनशिप, आपकी मतलब ह्यूमन बीइंग की, मैनकाइंड की उन स्कैर्स रिसोर्सेज के साथ रिलेशनशिप किस तरीके की है उसके बारे में बात की गई है। इज दैट क्लियर? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मोस्ट वांट्स कीप ऑन रिकरिंग। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है, और बहुत सारे वांट्स ऐसे हैं जो रिकर होते रहते हैं, चलते रहते हैं। On the other hand, human resource which help in satisfying the human wants are limited and have the alternative uses. यही चीज़ मैंने आपको समझाई कि भाई जो resources होते हैं वो limited रहते हैं, और जो human needs है वो unlimited होती है। तो आप किस तरीके से वो unlimited needs को satisfy करें, वो limited resources से, वो जो nature, वो जो relationship है human being का nature के साथ या resources के साथ, उसके बारे में economics discuss करता है। Hence, economics must deal with the problem of allocation. Allocation means allocating. जब आप उससे divide करते हो या allocate करते हो, जब बांटते हो, distribute करते हो, that is allocation. The allocation of scarce resources in the satisfaction of human wants to maximum possible extent. जितनी हद तक हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है, उतना ज़्यादा जब हम resources का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं economics, because economics is a study जहाँ पर human relationship उन resources के साथ किस तरीके का है जो limited है, और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो unlimited है। According to Robbins, economics is a positive science and does not prescribe how things should be. It studies how human beings behave and does not deal with how they should ideally behave. I repeat, according to Robbins, economics is a positive science and does not prescribe how things should be. वो ये नहीं बताता कि चीजें कैसे होनी चाहिए,
आई रिपीट, वो ये नहीं बताता कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, पर एक ऐसा साइंस जो ये बताता है कि ह्यूमन बींग्स कैसे बिहेव करता है और उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। Hence economic does not deal with the norms, thus it is not a normative science. देखो, ये नहीं बताता कि आपको ये करना चाहिए या यही प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं या इसी तरीके से आपको रिएक्ट करना है। आपका कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है उसमें आपका जो इफेक्ट है वो हमेशा यही होना चाहिए। इट वेराइज विद द नेचर बिकॉज इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, और सारे ह्यूमन बींग्स का रिएक्शन हर एक्शन को लेकर सेम हो सकता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज इकोनॉमिक्स हमें ये चीज बताता है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस बताए हैं हमें, अलग अलग सिचुएशंस बताई है, वो अलग अलग सिचुएशंस में ह्यूमन बीइंग्स का रिएक्शन किस तरीके का होता है वो बताता है। इसीलिए इट इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। इज इट क्लियर? नाउ द लास्ट डेफिनेशन इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय पॉल सैमुएल्सन। ही रॉट द बुक फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, Foundation of Economic Analysis in year 1947. In year 1947, Samuelson defines economics is a study of how people and society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities over time and distributing them for consumption now or in future among various persons in the society. अब ये बहुत लंबी है, अब इतनी लंबी डेफिनेशंस एक साथ नहीं करेंगे, we'll break it down. पहला पार्ट क्या करेंगे, कीप द ब्रैकेट इकोनॉमिक्स से लेके चूजिंग तक का, इकोनॉमिक्स से चूजिंग तक का ब्रैकेट लेंगे जिसके अंदर इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग, मतलब किस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स और जो सोसाइटी है वो चूज करती है। क्या चूज करती है? तो अदर ब्रैकेट गोज हियर विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, या तो आप पैसों के मीडियम से या तो बिना पैसों के मीडियम से। हियर मनी पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा दूसरा वाला, और टू एम्प्लॉय से ब्रैकेट शुरू करो। टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज मतलब एक ऐसे रिसोर्सेज जो कमी है, जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, जो बहुत सारे नहीं है, कम है पर उन बहुत प्रोडक्टिव है, वो कम है लेकिन वो बहुत प्रोडक्टिव है और उनके यूजेस जो है वो भी अल्टरनेटिव है। ठीक है, पहला क्या बात बोल रहा है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स चूज करते हैं उन चीजों की जो या तो पैसों से खरीदी जा सकती है या तो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, पर उनका एग्जिस्टेंस लिमिटेड है, वो रिसोर्सेज स्कैर्स है, वो रिसोर्सेज स्कैर्स है, पर उनके अल्टरनेटिव यूजेस है एंड दे आर प्रोडक्टिव। Now the other bracket goes here to produce various commodities over time. Commodities को प्रोड्यूस करने के लिए, commodities का मतलब होता है goods, तो commodities को प्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा पार्ट distributing them for consumption, दूसरा पार्ट distributing them, प्रोड्यूस किया, अब प्रोड्यूस करके हम ही रख छोड़ेंगे उसको, तो क्या मतलब उससे बांटना पड़ेगा, जिन जिनको जरूरत है उनको पहुंचाना पड़ेगा। नाउ और इन नियर फ्यूचर, जिनको अभी जरूरत है उन्हें अभी पहुंचाओ और जिन्हें बाद में जरूरत है उन्हें तब तक पहुंचाओ। जरूरी तो नहीं है कि अगर हमने अभी कोई चीज प्रोड्यूस की है तो सामने वाले इंसान को तभी खरीदना पड़ेगा जब आपने प्रोड्यूस किया है, नहीं, वो अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदेंगे। ठीक है, among various person in the society, it analyzes cost and benefit of improving patterns of resources. Now the last part is it analyzes cost and benefit improving pattern of resources allocation. कौन से अलग अलग रिसोर्सेज हैं जिनका अलग अलग बेनिफिट्स रहते हैं और किस तरीके से उसको अलग अलग तरीके से अलोकेट किए जा सकते हैं, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। हेंस सैमुएल्सन टॉक्स अबाउट चॉइस, हम किस तरीके से चूज करते हैं। पहला चॉइस, तो हम लोग ने पहला जो ब्रैकेट था उसमें चॉइस पढ़ा। दूसरा अलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, वो स्कैर्स रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट किया वो, और थर्ड इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट, कितना कॉस्ट होगा, एंड द लास्ट वन इज बेनिफिट ऑफ डूइंग सो। अब इतना सब करने का अगर कोई फायदा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, तो लास्ट में हम ये एनालाइज करेंगे कि उसका बेनिफिट क्या है। ऑल डेफिनेशन इन अ वे कॉमनली पॉइंट आउट इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। सारी डेफिनेशंस अलग अलग है पर एट द एंड ऑफ द डे दे आर स्टडीइंग द ह्यूमन बिहेवियर। So till now we have discussed the economics definition given by various economists. Now the other part is economic activity and non-economic activity.
अच्छा, इकोनॉमिक, आई हैव ऑलवेज सेड टू यू दैट इकोनॉमिक मतलब मनी। ऑफ कोर्स हम लोग जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो बेसिकली एक मनी के लिए की जाती है, पैसों के लिए की जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी which studies the human behavior, but how, what does the human activities do, किस तरीके से ह्यूमन ने सिविलाइजेशन शुरू किया उसके बारे में बात की जाती है। अब जब भी आप कोई गुड्स बनाते हो, गुड्स प्रोड्यूस करते हो या किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसके अगेंस्ट आप कुछ ऑब्लिगेशन लेते हो, मतलब आप उसके अगेंस्ट कुछ ना कोई चीज मांगोगे। अब पहले तो बार्टर सिस्टम होता था कि हम गुड्स के अगेंस्ट गुड्स देते थे या तो सर्विस के अगेंस्ट सर्विस होता था। बार्टर सिस्टम में गुड्स के अगेंस्ट गुड्स और सर्विस के अगेंस्ट सर्विस। लेकिन फिर जैसे जैसे सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी बार्टर सिस्टम में। ये ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगी कि भाई जो गुड्स मुझे चाहिए जरूरी नहीं है कि सामने वही गुड्स सामने भी मुझे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, A has wheat, A has wheat, now B has rice. A has wheat, A के पास गेहूं है, B के पास चावल है। A को राइस चाहिए B से, पर B को गेहूं की जरूरत ही नहीं है। B does not need wheat, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा क्योंकि उनकी जो नीड्स है वो कॉमन नहीं है। यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं होगी कि भाई यहाँ पे इधर इनको व्हीट चाहिए, इनके पास राइस है तो जो राइस है बी के पास वो ए के पास चले जाएंगे और जो ए के पास व्हीट है वो बी के पास चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक की नीड मीट हो रही है, दूसरे की नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इस वजह से हमारे पास आया इवैल्यूएशन ऑफ मनी, हमारे पास पैसा आ गया। तो जब हम लोग ने मनी से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की तो जब भी कोई एक्टिविटी, जब भी कोई कम्युनिटी या जब भी कोई सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम पैसा लेते हैं तो वो हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर आप उसके अगेंस्ट कोई पैसा नहीं ले रहे हो, अगर कोई भी पैसे का ऑब्लिगेशन नहीं है तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जिस तरीके के आपके अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स है वहाँ पे भी आपको कुछ केसेस ऐसे होते हैं या कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसकी कोई एंट्री नहीं बनती, सिर्फ वहाँ पे लिख दिया जाता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बिकॉज उसके अगेंस्ट कोई मनी का ऑब्लिगेशन होता नहीं। ओके, आई रीड इट फॉर यू। Activity performed with the purpose of getting economic benefit in form of incomes involving exchange of goods and services and factors as well as involving cost is called economic activity. I repeat, activity performed with the purpose of getting economic benefit मतलब पैसों का benefit in the form of income, या तो income के form में, involving पर वो income कब आप provide करोगे जब आपको goods और services मिली है तब, and factors as well as involving cost is called economic activity. Important aspects about economic activity pertain to purpose of making economic gains, satisfaction of some want, and involvement of exchange and cost. Example of economic activity: eating in restaurant. जब आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो तो रेस्टोरेंट वाला हमें फ्री में तो खाना नहीं खिलाएगा ना, we have to pay for it. So satisfy needs by incurring expense. आप खर्चा करके, एक्सपेंस करके आपकी नीड्स पूरी कर रहे हो। सेकेंड, वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर, आप थिएटर में कोई मूवी देख रहे हो तो यहाँ पे आपके एंटरटेनमेंट पे एक्सपेंस हो रहा है। थर्ड, वर्क इन वंस फार्म, आप खुद के फार्म में काम कर रहे हो तो टू एक्सर्ट लेबर एंड गेट आउटपुट। किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे, आप लेबर प्रोवाइड कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो वहाँ पे और उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट मिल रहा है। फोर्थ, गेट एम्प्लॉयड इन ए स्कूल टू टीच, स्कूल में हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट सैलरी मिल रहा है। दस ह्यूमन रिक्वायरमेंट आर प्लेंटी, ह्यूमंस की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक्टिविटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट थ्रू ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई रिपीट, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो इन्वॉल्व करता है कॉस्ट एंड बेनिफिट टू बोथ द साइड। यहाँ पे किसी एक को फायदा नहीं हो रहा। अगर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ पढ़ाने की तो सिर्फ आपको फायदा नहीं हो रहा, उसके अगेंस्ट मैं आपसे पैसा ले रही हूँ। यू आर गिविंग मी फीस अगेंस्ट इट, ये सर्विस के अगेंस्ट आप मुझे फीस दे रहे हो, मुफ्त में नहीं पढ़ा रही, तो वो क्या हो जाता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्योंकि बेनिफिट मुझे भी हो रहा है और आपको भी हो रहा है। और जब ये बेनिफिट हम दोनों रिसीव करते हैं तो वो हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर, लॉयर्स, टीचर्स, एक्टर्स, गवर्नमेंट ऑल परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। The following chain of activity is another example to clarify meaning of economic activity. A farmer needs a motorcycle. In order to earn income to pay for motorcycle, she works in her farm and sells the output for money.
The seller of motorcycles who earns money by selling the motorcycle spends it fulfilled to some other ones. Let's take an example. एक फार्मर है जिसे मोटरसाइकिल खरीदनी है। अब मोटरसाइकिल तो मुफ्त में नहीं मिलेगी क्योंकि मोटरसाइकिल वाला तो पैसा मांगेगा, और मोटरसाइकिल वाला जब पैसा मांग रहा है तो क्या कर रहा है, फार्मर मेहनत कर रहा है अपने फार्म में, मेहनत करके वो क्रॉप्स उगाकर प्रोड्यूस कर रहा है और उसके प्रोडक्शन को सेल करके पैसा ले रहा है, और वो पैसा मोटरसाइकिल सेलर को दे रहा है, जो मोटरसाइकिल सेलर किसी और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहा है। तो ये जो चेन है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे दोनों का फायदा है, जहाँ पे ऑब्लिगेशंस जो है वो इक्वल है, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, दैट्स इट फॉर द डे. This was a short concept about definitions given by various economists, and then we have learned about what is economic activity and non-economic activity. Okay. Now in the next lecture we'll go with micro and macroeconomics. Thank you so much.